Firstly, let me give a small introduction about myself. So, my name is Priyankush Ghosh. Okay, so I stay in Calcutta and I learned German language, in 2015. So I did my certification, Goethe certification in 2015, A2 and B1. Okay, so after that, I started teaching around 2018-19. So I was in Bangalore initially, and Okay. after that, I moved to my hometown during COVID. And Okay. since then, I am like almost a full-time German teacher. Okay, along with that, I also do some part-time, sometimes Mm. freelancing kind of work in IT industry. So I have a lot of SAP expertise. So Okay. I know SAP FICO. I know SAP ABAP, core ABAP. That is not the HANA and all those things. Not too much of those, but core ABAP I know quite a lot. And SAP FICO I know. I am actually a SAP FICO teacher also in SkillBiz. So Okay. you approach SkillBiz, right, for German language Yes. learning? Yes. Yeah, so so SkillBiz, actually I am associated with SkillBiz, so I teach FICO to a lot of their students, and today is a German demo, so they are also gradually, starting to think about a batch in German language, right? Mm. So you were interested for the demo, so that's why we are here today. Yeah. So at this moment, like I mostly teach in one-on-one. I mostly teach Okay. one-on-one German language. Mm-hmm. FICO, I teach in batches. Okay, FICO, I am associated with couple of institutes. Mm-hmm. SkillBiz, another institute. And but Mm-hmm. German, I am not. Apart from SkillBiz, I am not associated with any institute as far as German language teaching is concerned. But I have a lot of private teachers, private students. Sorry. Okay. So A1, A2, B1. I teach three levels primarily, but when I teach, say A2, I also Mm-hmm. teach a little bit of B1 in it. And so when I teach B1, because I am myself learning at this moment, I am myself kind of, because I'm a teacher, so I stay constantly in touch with the language. So I Mm-hmm. self-study B2 C1 level of books. Okay. Okay. So I know the B2 syllabus and everything. Okay. I can even teach B2 also, but since I myself Mm-hmm. am pursuing, so and B2 students, to be very honest, there are not too many people in the market who want to means have the tenacity to go till B2. Okay, so it's tough. Mm-hmm. Obviously, Okay. need a lot of determination and lot of resilience. I mean Mm-hmm. perseverance, I will say, because everybody has their office work, everybody has their school work, college studies, and all. So it becomes sometimes difficult for them, to Yeah. kind of maintain a continuity. Mm-hmm. So that's the thing. But yeah. So now tell me why yeah, about a little bit about yourself and why you now want to learn German language, and what is your plan like? Okay, so I'm planning to get a job in Germany in 2027, so I have 1 year to plan Mm-hmm. and prepare for that. And Yeah. one of my friend is So also there, so I'm trying to shift oh, there. Yeah. so which is your domain? IT industry, IT network and security. Acha, so have you checked in websites, LinkedIn and all, that what kind of opportunities are there? No, the opportunity I haven't checked, but I am eager to learn one language so I can like Oh, English is there. I know English on the basis of English I yeah, can go yeah. while I can Uh-huh, teach. uh-huh, So uh-huh. other language I Uh-huh. need to learn. Yeah, English is definitely there. So English, see, the German Mm. people, they can speak English, but the thing is that they don't like speaking English, okay, because they don't like the language overall. Yes, And yes, that is. I am also associated with German language for past 7, 8 years. So Mhm. I also think that German, is a more classical language and it has more flexibility compared to English. Okay, so Mhm. overall, I would say it's a better language than English, and it's an older language also. So English Yes. evolved much later. German, French, these are older languages. Okay, English evolved much later. Okay, so English became the international language. Mhm. Obviously, after World War II, when World War II, US and UK, those people they won the war. After that, Mhm. obviously, English became even more popular. But the Germans and Japanese, these people lost the war. So that's why these languages, have not got international acclaim. But in Mhm. these countries, when you go to Japan, okay, learning Japanese is mandatory. When you go to China, also learning Chinese is mandatory. When you go to Mhm. France and Germany, also there also French and German are almost mandatory, because
they like speaking in German language. So I have few Yeah. students from Germany also who are staying in Germany right now. So I have Mm-hmm. also learned from them that when you talk in German in front of them, they Mm-hmm. means it's easier for you to get their attention or get Mm-hmm. help from them if you talk in their language. Okay? If you talk in English, na, they Mm-hmm. a little bit they काइंड ऑफ Hesitate and avoid the things. Yeah. हाँ मतलब थोड़ा उतना ना आपसे ये करके नहीं बात करेगा जैसा आप अगर जर्मन में बात कर रहे हो तो दे रियली अप्रिशिएट दैट अच्छा Yes. दिस पर्सन हैज काइंड ऑफ टेकन द इनिशिएटिव टू लर्न आवर लैंग्वेज एंड ही इज टॉकिंग टू अस सो दैट्स द थिंग मींस इंडिया से बहुत लोग हैं वहां पे जो बिना लैंग्वेज जाने भी चल रहा है उन लोगों का बट आपको अगर Mm-hmm. फ्यूचर में उन लोगों का उधर परमानेंट वीसा चाहिए परमानेंट Mm-hmm. रेसिडेंशिप चाहिए ब्लू कार्ड चाहिए तो वो सब के लिए A1 A2 लेवल का जरूरत पड़ना है और अगर Yes. आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपना सीवी अगर आप जर्मन में बनाना चाहते हो ठीक है और अगर Mm-hmm. आप जर्मनी के जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ज्यादा जॉब्स में अप्लाई करने को मिलेगा अगर आपको लैंग्वेज पता है तो लैंग्वेज जानना मतलब उधर जाके भी आप अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो तो दूसरा कंपनी में अगर स्विच करना चाहते हो ठीक है Mm-hmm. तो भी आपको जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्टीज चाहिए होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर घूमना है आपको अगर वहां पे सुपरमार्केट में जाके ये करना है Mm-hmm. तो मतलब इट्स लाइक देखो आप इंडिया में बेंगलोर में जाओगे बिना कर्नाटक जाने आपका हो जाएगा लेकिन आप Mm-hmm. अगर थोड़ा कर्नाटका का छोटा मोटा शहर में जाओगे और जो टायर 2 वाला शहर है तो वहां पे जाके आपको अगर थोड़ा कन्नड़ अगर आपको पता है तो अच्छा होगा ठीक है Yeah. इज बेटर सो सिमिलरली जर्मनी में भी वैसा है कि जो बड़ा शहर है म्यूनिक बर्लिन फ्रैंकफर्ट यहाँ पे आपका इंग्लिश में चल जाएगा लेकिन जो थोड़ा सेकंड टायर शहर है हाँ Mm-hmm. जैसे ड्रेसडेन हो गया लाइप्जिग हो गया magdeburg हो गया तो ये सब जगह में आपको थोड़ा बहुत जर्मन का जरूरत अच्छा खासा पड़ सकता है तो एप्लीकेशन आप ज्यादा कर सकते हो जर्मन जाने तो Yes. ठीक है तो तो बेसिकली हाँ तो आपका 2027 वाला टारगेट है और आप तो मतलब आपको कुछ पता है मतलब हैव यू सेल्फ स्टडीड एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट और एनीथिंग A1 A2 और एनीथिंग लाइक दैट Just started from Duolingo as well. डुओलिंगो हाँ 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 डुओलिंगो जरूर करना डुओलिंगो इज अ गुड प्लेटफॉर्म मतलब मैं भी पर्सनली डुओलिंगो करता हूँ Mm-hmm. ठीक है तो डुओलिंगो करते रहना और डुओलिंगो में जो सीखोगे ना वो थोड़ा डॉक्यूमेंट करते रहना आप भी मतलब ऐसा नहीं कि खाली जैसे डुओलिंगो सीखे वट एवर द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स यू आर लर्निंग एंड ऑल ठीक है तो Mm-hmm. दोस थिंग्स ऑल्सो ट्राई टू डॉक्यूमेंट समवेयर ठीक है कि दीज आर द न्यू वोकेबुलरीज आई हैव लर्नड टुडे एंड ट्राई टू राइट स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस ठीक है Mm-hmm. मतलब ऐसा नहीं कि खाली डुओलिंगो में आप जान गए कि फाटर मुटर ब्रूडर स्वेस्टर ठीक है तो Mm-hmm. छोटा छोटा सेंटेंसेस लिखना कोशिश करना ठीक है छोटा छोटा सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करना तो डुओलिंगो मैं भी करता हूँ आई ऑल्सो सो आई हैव अ स्कोर ऑफ 80 इन डुओलिंगो इन जर्मन ओके विच इज वेरी रेयर यू विल नॉट फाइंड टू मेनी पीपल who are ranked who have 80 score in German ठीक है तो Okay. मेरा 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 स्कोर जर्मन में 80 है Okay. तो मैं आपको बोलता हूँ आई डोंट नो डोंट शो है सी मैं 84 डेज से कर रहा हूँ बेसिकली ठीक है Okay. मैं कंटिन्यूअस 84 डेज से जर्मन कर रहा हूँ Mm-hmm. I don't know why they are not showing the score. See, I'm in the Diamond League. Mm, ठीक है, okay. I'm in the Diamond League. See, 56,000 XP I have in German. Mm-hmm. हम्म तो यहाँ पे 80 स्कोर क्यों नहीं दिखा रहा है मेरा तो मेरा मोबाइल ऐप में दिखाता है आई डोंट नो व्हाई Okay. दे आर नॉट रिप्लाई सी हियर आपको वर्ड्स वर्ड्स मिलेगा देखो सी mistakes, words. So all these new words I have recently Mm-hmm. learned new words. तो ये सब ना एक जगह में डॉक्यूमेंट करना these words. Mm-hmm. Try to form small small sentences. Okay. ठीक है अच्छा तो अभी मैं आपको ना थोड़ा बहुत मेरा जो कोर्स करिकुलम है जो मैं कवर करता Mm-hmm. हूँ वो थोड़ा दिखाता हूँ तो Okay. फर्स्टली A1 A2 so this is the book that I cover for you ना A1 and A2 which is Mm-hmm. teach yourself German okay so this is a very nice book I mean this is a book which is meant for people who are learning the language and they are very Mm-hmm. expert in English means जो लोग इंग्लिश को almost like मदर टंग के तरह यूज करते हैं जैसे कि Okay. अस इन इंडिया हम लोग भी इंग्लिश को मदर टंग के तरह यूज करते हैं ऑलमोस्ट राइट मतलब Mm-hmm. इंग्लिश तो तो बेसिकली ये बुक जो है ना ये चैप्टर 23 चैप्टर है टोटल ये बुक में ठीक है तो Mm-hmm. यहाँ पे देखो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा है ठीक है तो Mm-hmm. आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे ठीक है सो सो इफ यू कैन जस्ट रीड द बोल्ड पार्ट्स 01 माई नाम है ईस्ट Mm-hmm. जस्ट रीड इट
The bold part. Bold part introduction 01. My name is Then language point. language point Hmm. 02. Mia gets good हाँ, और language उसका point. बाजू में देखना इटैलिक्स में इंग्लिश लिखा है, ठीक है, Hmm. तो वो इंग्लिश भी पढ़ना. सो 01 माई नेम इज Name is लैंग्वेज पॉइंट आई एंड यू वर्ड ऑर्डर. 02 मीर गेट्स गुड आई एम फाइन लैंग्वेज पॉइंट विद वर्ब एंडिंग्स. तो ऐसे ऐसे करके रीडिंग पढ़ो एक बार. 03. This is we are try, but man does. हम्म, How do you write that? हम्म, Language point yes, no questions. हाँ, 04. Sprachen Sie Deutsch? Do you speak हम्म, German? हम्म, Language point formal and informal you. हम्म, 05. India's that हम्म, in town. Language point gender and articles. हाँ, अभी 06. 06. Arbeit. हम्म, But it's L or I? अर्बाइट. Okay, Arbeit. अर्बाइट. Und Studium. Work and study. Language हम्म, point. The verbs in 07. Essen and Tinken. Food and इसे drink. ट्रिंकन. हाँ, हाँ. Language point. The accusative case. हम्म, Containers and their content. 08. Einkaufen und bestellen. Shopping and हम्म. ordering. हाँ, तो ये Language जो सब आपको दिख रहा है ना बोल्ड में और बाजू में जो इंग्लिश में इटैलिक लिखा है, ये बेसिकली ये चैप्टर का एजेंडा है. तो ये Mm-hmm. चैप्टर में ना इसी टॉपिक्स को सेंटर करके सिखाएगा. ओके, तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है एकदम रियल लाइफ टॉपिक्स है, राइट. तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स जो हम लोगों को उधर जगह बात करने में Mm-hmm. ये सब टॉपिक्स में हम लोगों को बात करना पड़ेगा ज्यादातर टाइम. whenever we are Yes. meeting people inside the office, outside the office, in weekends. Mm-hmm. और okay, अभी कंटिन्यू करो. Continue to read. Okay. 09. 08. Einkaufen 8. und bestellen. Shopping und ordering. Einkaufen and bestellen, shopping and ordering, language points, plural forms of nouns and order. Word order. ठीक है. 09. हाँ. 09. Prices. Site, Laser. laser, Laser. हाँ. language points, irregular verbs, forms, and using gen. 10. हाँ. D, Uazite, हाँ. Correct. language point, separate verbs and more on word order. Correct. 11. Was, McCain, via, heute. Heute. Yeah, what are we doing today? Language Hmm. point, modal verbs, Conan, and museum, Museum. use of in for focusing on position. Yes. Correct. And Then 12. chapter 12. Yeah, Eine Fahrkarte nach Heidelberg, bitte. A ticket Yes. to Heidelberg, please. Yes. ठीक है. और इधर आपका लैंग्वेज पॉइंट क्या है? ऊपर में राइट साइड में राइट साइड में क्या चीज है? लैंग्वेज पॉइंट डाटिव आफ्टर प्रीपोजिशन, राइट. ठीक है. या लैंग्वेज पॉइंट डेटिव हाँ. एंड आफ्टर हाँ, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. अच्छा था. चैप्टर 13. 13. Was has to am Wokende वोकेनंडे. Gamet. How he is spelled? वोकेनंडे. हाँ. व्हाट डिड यू डू एट Wokende. द वीकेंड? वोकेनंडे. वीकेंड. व्हाट डिड Okay, यू डू एट द Wokende वीकेंड? weekend. Okay. Gemacht. गेमाक्ट. करेक्ट. Language point the perfect tense and adjectival endings. Okay. 14th. We are ins Grune. Grune. Okay. It's Grune or Grune. R like ग्रूने. Scotland. ग्रूने. करेक्ट. ग्रूने. Garfen. And language. गिफारन. गिफारन. Gaffaren. Yeah, लैंग्वेज Gaffaren. पॉइंट मोर ऑन द परफेक्ट टेंस. Yeah, Gaffaren. Language point one or more perfect tense. Okay. करेक्ट. Workman in Deutschland, living in Germany. Language point one on the dative and the comparative. मोर ऑन द डाटिव एंड द कंपैरेटिव. ओके, तो उसके बाद 16. Then होटल. Welch's hotel name and where. वियर. Which hotel
Shall we take language, Yes. the superlative and more Hmm. prepositions? Hmm. Is mode witching? Is fashion important? Okay. So mode is fashion. Yes. Okay. Correct. Exactly. Language point adjectival endings and it was It was plus objective. Correct. 18 und was kann man Ihnen ihnen schenken. schenken? This What is can we give them? and what we can give them. A Hmm. language point indirect objects and ऑब्जेक्ट एंड वेरियस यूजेस ऑफ द डाटिव। ठीक है, अभी देखो और नीचे। सो चैप्टर 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, क्या क्या मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स का, टॉपिक्स क्या है, स्कीमा क्या है चैप्टर 18 का 1 से 18 तक। अभी 19 20 लास्ट 5 चैप्टर पढ़ो एक बार। 19 Gesundheit, diet, health। health, हम्म। discussing health, language model verbs and when plus a verb at the end of a clause. हम्म। 20 Wetter und Urlaub, उर्लभ, हाँ। weather and holidays. Language point revision of the perfect tense, preposition, and the past tense of the model verb. हम्म। 21 telephone, टेलीफोनियरन, टेलीफोनियरन एंड telephone, उन दी Geschäftsworld मतलब बिजनेस or वर्ल्ड। yes, हम्म। what? Okay, telephone and the business world. हम्म। Language, the revision of dative pronouns and use of the genitive. यस, गेनिटिव, करेक्ट। हाँ। It's genitive or genitive? गेनिटिव मतलब जर्मन में उसका जी का प्रोनाउंसिएशन ग के Okay, तरह होता है। ठीक है, okay. इंग्लिश में इट्स जेनिटिव ओनली, Hmm. जर्मन में वो गेनिटिव हो गया है। ठीक है। Stellengebote. स्टेलन Stellengebote. अंगेबोते। Angebote, okay. हम्म। Stellenangebote, okay. हम्म। Und Lebenslauf. लाओफे। हम्म। Laufe, okay. लाओफे, लेवेंस लाओफे। Lebenslaufe. हाँ। Lebenslaufe. हम्म। Job application and CVs. Language point more on the simple past सिंपल tense. पास्ट टेंस। ठीक है, हाँ। चैप्टर 23। What is this? Gas. Chi. गेशिष्टे, गेशिष्टे। Gesiste. Okay. Gesiste. हाँ। Und allgemein vision, ओके, जनरल नॉलेज। हम्म। allgemein Vision. ये Vision. allgemein vision, हाँ, जनरल नॉलेज। Allgemein Vision. Okay. हाँ, Allgemein जनरल Vision. नॉलेज। History and general knowledge. Language point subordinated clauses with thus and the passive. हम्म। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या लिखा है, टेस्टिंग योरसेल्फ, key to the exercises, key to the texts, listening comprehension transcript, glossary of grammatical terms, list of common strong and mixed verbs, grammar English, German English vocabulary, English German vocabulary, taking it further, index to grammar। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका बुक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप मैं अगर 187 आपको ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे 187 लिखा है ऊपर में, यू कैन सी 187 रिटन एट Yes. द टॉप। सो मैं अगर पूरा एकदम 170 70 वो सब में जाऊंगा तो आपको यहाँ पे पूरा ये सब अपेंडिक्स पोर्शन है बुक का। मतलब आपका चैप्टर के अंदर जो भी ऑडियो फाइल्स है, वो ऑडियो फाइल्स का जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप अगर ऑडियो सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग इधर आके इसका टेक्स्ट देख सकते हैं। जितना भी चैप्टर के अंदर जितना भी एक्सरसाइजेस है उसका सब आंसर, ठीक है, वो सब हम लोगों को इधर मिलेगा। ठीक है, ऑल द आंसर्स, जितना भी चैप्टर्स का एक्सरसाइजेस है सब, ऑल द आंसर्स हम लोग को नीचे मिलेगा। फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, चार चार चैप्टर पढ़वा के ये लोग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसमें 40 मार्क्स का रहता है, उसमें से कितना हम लोगों को मिलेगा वो इवेलुएट करेंगे। सो हम लोग जब ये हमारा कोर्स करेंगे तब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करेंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल डू। ठीक है, एंड दिस बुक इज This is मोर और लेस, A1 exam or हाँ, दिस इज A1 + A2। A1 ठीक है, plus A2. दिस इज A1 + A2 एंड दिस बुक इज मोर और लेस 75 to 80%, बाकी 20% मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो आई मैन्युफैक्चर मेनी एक्सरसाइजेस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं कराता हूँ। मेरे पास दूसरा भी कुछ बुक्स है, मेरे पास दूसरा भी बहुत सारा पीडीएफ्स है, तो मैं आपको स्लोली स्लोली दिखाऊंगा। ठीक है, सो सो दिस इज अवर मेन टेक्स्ट कम वर्कबुक। ओके, तो ये बुक में जितना भी चैप्टर्स है और इसका अंदर जो भी एक्सरसाइजेस है ये सब हम लोग पूरा थॉरोली करेंगे। ये 75 to 80% ऑफ आवर कोर्स है। ठीक है, तो अभी ये जो बुक आपको दिख रहा है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडियो फाइल्स है बहुत सारा। ठीक है, तो दीज आर द ऑडियो फाइल्स।
So these are my audio files. So chapter wise I have differentiated the audio files. See chapter 23. ठीक है, सो एक एक चैप्टर के अंदर ऑडियो फाइल्स है. ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चैप्टर का एक ऑडियो फाइल सुनाता हूँ और आपको मैं इसका टेक्स्ट भी दिखाऊंगा. ठीक है, चैप्टर 9. ओके, एक्सरसाइज 5 to 6. सो लेट्स गो टू चैप्टर 9. तो आपको थोड़ा बहुत ये बुक के बारे में आइडिया आना चाहिए कि बिकॉज दिस इज द बुक दैट आई एम गोइंग टू फॉलो. ओके, वेरी वेरी नाइस बुक. मैं ये बुक पिछले 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं गुड 2016 में जब A2 पास किया था तब मैं खुद भी ये बुक पढ़ के पास किया था. ठीक है, तो सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है. वो जमाने में जो सिलेबस था अभी का सिलेबस भी सेम ही है मोरलेस. ठीक है, तो ये दिस इज माई ऑडियो एक्सरसाइज. सो अभी आप अच्छा से एक चीज नोटिस करो and listen to the pronunciations, okay, because when we are learning any new language it's very important that we understand the pronunciation. So ये जो डायलॉग है, ये जो डायलॉग है आपका, ठीक है, ये डायलॉग में आप एक चीज नोटिस करो. आपका ये डायलॉग में आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक ये मेंशन आइकन आइकन है, राइट? यहाँ पे करेक्ट, ये वो एक आइकन है. ये आइकन देखो यूट्यूब की तरह दिख रहा है. ठीक है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे एक ऑडियो फाइल है. ओके, सो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 5, दिस इज 09. यहाँ पे देखो आपका 09 लिखा है. ये 09 दिख रहा है आपको. हाँ, यहाँ पे ये राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी आपको 09 दिख रहा है. स्क्रॉल बार किया चला जाता है. ये देखा 09 लिखा है यहाँ पे, राइट? ठीक है, तो ये चैप्टर 09 का एक्सरसाइज 5 है. ओके, तो अभी मैं ऑडियो चलाऊंगा. सो दिस इज माई ऑडियो. Unit ओके, 9. सो नाउ व्हाट यू डू इज, आपके सामने मैं ये टेक्स्ट खुल के बैठा हूँ. ठीक है, और मैं ये ऑडियो चला रहा हूँ. ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन में नोटिस करो. Leisure. Lektion 9, Übung 5. Frauke und Sandro lernen sich in einer Bar kennen. Frauke and Sandro are getting to know each other in a bar. Listen to the dialogue and answer the questions. Hast du eigentlich ein Hobby? Tja, ich trainiere gern und ich schwimme auch gern. Und du? Ich lese gern Romane und ich fotografiere gern. Ach so? Und gehst du auch gern ins Kino? Oh ja, ins Kino gehe ich sehr gern. Und isst du gern Italienisch? Ja, sicher. Ich esse sehr gern Pizza. Gut, dann gehen wir ins Kino und nachher essen wir Pizza. तो समझा? ठीक है, यू अंडरस्टूड द प्रोनाउंसिएशंस आर सो मच डिफरेंट. देखो इंग्लिश के तरह यहाँ पे भी A to Z है, लेकिन इंग्लिश से प्रोनाउंसिएशंस काफी हद तक डिफरेंट है, इजंट इट? ठीक है, शुई में देखा कैसे प्रोनाउंस कर रहा था, ट्रेनियर है, राइट? देयर प्रोनाउंसिंग इट मच डिफरेंट देन इंग्लिश, राइट? पिज्जा का भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट कर रहा था, राइट? इटालियनिश. ठीक है, तो स्पेलिंग जो है आप देखो इटालियनिश. ठीक है, तो काफी सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस मतलब सिस्टमेटिक डिफरेंसेस ऑफ देयर. ठीक है, ओके, तो इसी पर्सपेक्टिव में लेट्स ओपन वन एक्सेल एंड यू नो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द जर्मन लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. सो फर्स्टली तो व्हाट आर द, तो ये एक्सेल में आपसे शेयर करूंगा डेफिनेटली आफ्टर द डेमो क्लास. सो आई विल शेयर इट टू स्किलविज को मैं, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूँ. ओके, तो इंग्लिश में यहाँ पे 26 अल्फाबेट्स है. ठीक है, जर्मन में 26 + 4 30 अल्फाबेट्स है. हाँ हेलो, 26 + 4 = 30 अल्फाबेट्स है जर्मन में. ठीक है, तो ये 26 अल्फाबेट तो A to Z वो है. व्हाट आर दिस 4 एडिशनल अल्फाबेट्स? ओके, तो 4 एडिशनल अल्फाबेट्स है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? आवाज आ रहा है ना मंजित भाई मेरा? जी हाँ जी. These are allowed. ये चारों है द 4
alphabets. Okay, A umlaut, O umlaut, U umlaut, beta. ठीक है. Now इसका pronunciation में क्या difference रहता है? ठीक है, तो ये चारों अल्फाबेट्स है. तो अभी हम लोग ना एक एक वर्ड सुनेंगे ए का. ठीक है, ए फॉर Okay. apfel. ए फॉर apfel. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनो और फिर हम लोग सुनेंगे एक ए उमलाउट वाला प्रोनाउंसिएशन. Okay. Der Apfel. apfel. Der Apfel. apfel. ये डेयर डी डास वो मैं बाद में आता हूँ. ठीक है, जो हम्म. मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल का आर्टिकल्स है वो. Der Apfel. apfel. ठीक है, apfel मतलब एप्पल. ठीक है, apfel. एंड अभी ये वाला वर्ड देखो. ठीक है, ये वाला वर्ड में देखो ए के ऊपर उमलाउट है. ठीक है, ए के ऊपर उमलाउट है. ठीक है, देखो प्रोनाउंसिएशन. Dänemark. देखो डेनमार्क. Dänemark. And A. Dänemark. इट्स लाइक आई. ठीक है, डेनमार्क. ठीक है, इट्स लाइक आई. समझ गए? ये है ए और ये है आई. ओके, Hmm. सो Yes. दिस इज लाइक ए ई टाइप का प्रोनाउंसिएशन. A. E. ठीक है, Yes. सिमिलरली ओ उमलाउट का भी प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होता है. सो दिस इज लाइक ओ ई. Yeah. एंड यू A. उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन भी यू ई के तरह होता है. Double. यू ई. ओके, तो हम लोग सुनेंगे अभी. ठीक है, तो डेनमार्क डेनमार्क हो गया. अंकल. Mm-hmm. ठीक है, अंकल और ऑयस्टराइज सुनेंगे अभी. अंकल. Der Onkel. डे अंकल. Der Onkel. Der Onkel. ठीक है. ओके. ठीक है, अभी सुनेंगे ऑयस्टराइज. ऑयस्टराइज मतलब ऑस्ट्रिया बोल के जो देश है ना उसका जर्मन का वर्डिंग है ऑयस्टराइज. Österreich. ऑयस्टराइज. Österreich. ऑयस्टराइज. Österreich. ठीक है, ओ ई के तरह. Österreich. गॉट इट. Mhm. ऑयस्टराइज. ओके, अभी यू सुनेंगे. यू. तो यू का ओके, सो हम लोग उर्लाव सुन रहे. उर्लाव. Mhm. Der Urlaub. डे Der उर्लाव. Urlaub. Der Der उर्लाव. Urlaub. Der Urlaub. ठीक है, एंड इसका सुनेंगे हम लोग. यूबुंग सुनेंगे. यूबुंग. Die Übung. यूबुंग. यूबुंग. Die Übung. यूबुंग. यूबुंग. You. Die Übung. ठीक है. यूबुंग. ओके, नाउ एक वर्ड सुनेंगे पासन बोल के जिसमें डबल एस है. ठीक है, जिसमें डबल एस है. और एक बात बोलेंगे फूसबॉल जिसमें बीटा है. Passen. पासन. देखो Passen. प्रोनाउंसिएशन. पासन. Passen. Passen. ठीक है, अभी देखो फूसबॉल का प्रोनाउंसिएशन सुनाऊंगा मैं. फूसबॉल. देखो इसमें बीटा है, इसमें डबल एस नहीं है. Yes. Der Fußball. फूसबॉल. Der Passen. Fußball. Der Fußball. So you understood what is the difference between the pronunciation? Passen is like normal. फूसबॉल में क्या हो रहा है ना, आपका जो यू है उसका प्रोनाउंसिएशन ना थोड़ा लंबा रहता है. तो इसमें क्या होता है, आपका एस के ऊपर ना स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है. जब आपका वावेल जो है वो एस के आगे वावेल बैठा है, तो वावेल का प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा लंबा देर से चलता है तो वो डबल एस ना बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डबल एस के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, तो वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन ऑफ पासन एंड फूसबॉल. गॉट इट. तो ये जो 4 कैरेक्टर है ये आपका 4 एडिशनल कैरेक्टर है जर्मन लैंग्वेज में. ठीक है, सो 4 एडिशनल अल्फाबेट्स इन जर्मन लैंग्वेज. ओके, तो ये हो गया आपका डिफरेंस नंबर. Mhm. एक मिनट.
ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा अल्फाबेट रिलेटेड था। दूसरा, इंग्लिश में आपका जब हम लोग लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, तो गुड और गुड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन द बॉय मैस्कुलिन है, ठीक है, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल। लेकिन जर्मन में फर्क पड़ जाता है। वाई? बिकॉज जर्मन इज अ जेंडर डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये हिंदी की तरह है, जेंडर डिपेंडेंट हो जाता है। तू तू जाता है, तू जाती है, ठीक है, गाड़ी आ रहा है, बस आ रही है, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये जो गुड है, जो कि इंग्लिश में गुड गुड ही रहता है, ये गुड जर्मन में आपका गुटर, गुटे, गुटेस, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। गुटर, गुटे, तो गुटर युंगे, ठीक है, गुटे फ्राउ, गुटेस गेशविस्टर, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। गेशविस्टर मतलब सिबलिंग, फ्राउ मतलब वुमन, युंगे मतलब बॉय, ठीक है। तो हमारा ये जो गुड एडजेक्टिव है, गुड, ठीक है, ये गुड मेरा एडजेक्टिव है। ये जो ईआर वाला है, ये जो ई है, ठीक है, ये मेरा क्यों ऐड हो रहा है? जेंडर के लिए, ये जेंडर के लिए ऐड हो रहा है। तो जर्मन इज अ जेंडर डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो हम लोगों को ये मतलब ग्रामर जो है ना जर्मन का, वो थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है इंग्लिश से, क्योंकि यहाँ पे जेंडर का पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो कि इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हम लोगों को एवरी टाइम व्हेन वी विल राइट अ सेंटेंस, हम लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा कि ये जो नाउन है, ये जो गुड के बाद जो बॉय लिखा है, जो गर्ल लिखा है, इसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो अभी ये गुड जो है वो खाली बॉय और गर्ल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? ये एक होटल के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, एक चर्च के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, बार के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, रेस्टोरेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, गार्डन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो मेरा जर्मन में होटल होगा डास होटल, चर्च होगा डी किर्चे, बार होगा डी बार, रेस्टोरेंट होगा डास रेस्टोरेंट, गार्डन होगा डर गार्डन। ठीक है, तो ये देखो मेरा इंग्लिश में इट्स ऑलवेज द द द द। इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, सब द होटल, द चर्च। जर्मन में देखो डास हो जाना है, डर हो रहा है, डी हो रहा है, राइट? ठीक है, मैं अगर प्लूरल लिखता हूं द होटल्स, तो वो भी जर्मन में होगा डी होटल्स। ठीक है, तो जितना भी प्लूरल वर्ड होता है ना, वो सब डी होता है। सो डी मतलब फेमिनिन, सो दिस इज प्लूरल। एंड गार्टन, देयर गार्टन, सो दिस इज मैस्कुलिन। Das restaurant, this is neutral. Die bar, this is feminine. Die Kirche, feminine. This is neutral. Das is neutral, ठीक है? Das is neutral. और ये मस्कुलिन और फेमिनिन कैसे हैं, मतलब वो कोई रूल है क्या? देखो देयर आर सर्टेन रूल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देयर आर सर्टेन रूल्स कि ये टाइप का जो नाउन्स रहता है, जिसका एंडिंग्स रहता है, हाँ, तो ये सब यूजुअली आपका फेमिनिन होता है। हाँ, उस स्पेसिफिक एंडिंग्स के लिए यूजुअली मैस्कुलिन होता है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो हम लोग जब एक ये लैंग्वेज सीखेंगे, तब वेन एवर वी विल, आप जैसे डुओलिंगो से सीख रहे हो, राइट? तो डुओलिंगो से आप जब कोई भी वर्ड सीखोगे जर्मन में, वो ना उसका जेंडर जरूर पता करना। तो कैसे पता करोगे? ठीक है, ये लियो डिक्शनरी बोल के एक वेबसाइट है, मैं ये एक्सेल में चिपका रहा हूँ इसको। तो लियो डिक्शनरी वेबसाइट में आके आप कोई भी वर्ड, जैसे कि होटल, होटल टाइप किया, देखो यहाँ पे लिखा है डास होटल, देखो इधर डास होटल लिखा है। कहाँ पे लिखा है वो डास होटल? ये देखो डास होटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो आपका है ना, क्या है ये, सो
ये देखा, डास होटल, राइट, डास होटल, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको जेंडर मिलेगा, डास है मतलब न्यूट्रल, डास है येलो, देखो मैंने न्यूट्रल लिख दिया है, ठीक है। डी है प्लूरल और फेमिनिन, तो मैं ये प्लूरल वाला डी को अलग कर देता हूँ कलर। ये है फेमिनिन, ठीक है, किर्शे बार फेमिनिन। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोचो बार, डी बार, ठीक है, देखो मैंने डी बार लिखा है यहाँ पे, ओके। तो ये बार इज बार, रेस्टोरेंट, ठीक है। तो एनी जर्मन वर्ड, सोचो कि आप अभी कॉल अटेंड किए हो, राइट, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप लैपटॉप से मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपके पास सोचो कि एक मोबाइल फोन है, आप सोचो कि एक लैपटॉप का टेबल, लैपटॉप आपका टेबल के ऊपर है, फिर आपके पास सोचो कि आपने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप बाजू में कोई वाटर बॉटल रखा है आपने, ठीक है, कोई पेन पेपर रखा है। तो ऑल दिस थिंग्स, वाटर बॉटल, पेन पेपर, लैपटॉप, टेबल, मोबाइल फोन, ठीक है, एवरीथिंग जर्मन में कोई ना कोई एक जेंडर होगा, मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन होगा, नहीं तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। कोई भी शब्द जर्मन में एक जेंडर होगा ही होगा, समझ गए? ओके, नाउन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट प्रोनाउन और दोस थिंग्स, नाउन्स, जितना भी नाउन है, नाउन मतलब क्या, फादर मदर एवरीथिंग, कोई भी शब्द, ठीक है। नाउन, नाउन तो समझते हो राइट, इंग्लिश में आप नाउन किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी नाउन जो है वो जर्मन में हमेशा जेंडर होगा, ओके। तो ये हम लोग, एंड डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर हम लोगों का क्या क्या चेंज होता है, एडजेक्टिव चेंज होता है, आर्टिकल चेंज होता है, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने डास डास लिखा, ठीक है, सिमिलरली आपका इंडिफिनिट आर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा ना, इंडिफिनिट आर्टिकल के लिए ये आइन हो जाएगा, ये आईने हो जाएगा, ये आईने हो जाएगा, ये आइन हो जाएगा, ये भी आइन हो जाएगा, ये आईने नहीं होगा, ये डी हो जाएगा। सो ये डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। सो इनडिफिनिट आर्टिकल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्लूरल, मतलब आप इंडिफिनिट, आप आप सोचोगे इंग्लिश में बोल रहे हो कि मेरे पास 3 फुटबॉल है, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आई हैव अ फुटबॉल्स, आप बोलोगे आई हैव 3 फुटबॉल्स ना, ठीक है, फुटबॉल्स, आप वो आर्टिकल यूज नहीं करोगे ना, ये आर्टिकल, करेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं सब कलरिंग कर देता हूँ। And ठीक है, ओके, अच्छा, ये गया मेरा दूसरा डिफरेंस। सो एवरीथिंग इज जेंडर, जेंडर के साथ रिलेटेड है, तो मेरा एडजेक्टिव जो है वो जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, हाँ, मेरा आर्टिकल जो है वो जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर बोलूंगा कि अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा कि होटल, मैं बोल रहा हूँ कि गुड होटल, तो मेरा गुड होटल जब मैं बोलूंगा, तब मेरा यहाँ पे हो जाएगा गुटेस होटल, ठीक है। तो ये मेरा ईएस जो है, ये मेरा गुटेस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा किर्शे, किर्शे में मैं बोलूंगा गुटे किर्शे, ठीक है। तो ये मेरा, अच्छा, बार, बार भी मैं बोलूंगा गुटे बार, मतलब ये बार अच्छा है, ठीक है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में क्या बोलूंगा मैं, गुटेस रेस्टोरेंट। गार्डन, गार्डन में मैं बोलूंगा गुटर गार्डन। होटेल्स में क्या बोलूंगा मैं, गुटे होटेल्स, ठीक है। तो मेरा प्लूरल और फेमिनिन जो है वो दोनों ही ई एंडिंग ले लेते हैं, तो मेरा एक्चुअल एडजेक्टिव जो है वो गुड है, लेकिन गुड के साथ ये सब ऐड होगा, जर्मन डिपेंडेंट, जेंडर डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। देयरफॉर एडजेक्टिव गेट्स एडेड विथ डिक्लिनेशंस और सफिक्सेस, ठीक है, ओके। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। सेकंड, थर्ड मोड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, विच इज इंग्लिश में हम लोग जब बोलते हैं कि आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई शैल गो टू जिम। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, इंग्लिश में कैन एक वर्ब है, प्ले एक वर्ब है, ये दोनों बाजू बाजू में बैठ जाता है। शैल एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, ये दोनों बाजू बाजू में बैठ जाता है। जर्मन में ऐसा नहीं होता है, हम तो कभी भी जर्मन में कैसा होता है ना, ई कान, ठीक है। तो यहाँ पे ये कान एक वर्ब है आपका,
एंड स्पीलन एक वर्ब है, ठीक है। ich soll, तो ये गेहन एक वर्ब है, ओके ये गेहन एक वर्ब है, ये जॉल एक और वर्ब है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस? इंग्लिश में दो वर्ब बाजू बाजू में बैठते हैं, जर्मन में बाजू बाजू में नहीं बैठता है, ठीक है। सेकंड जो वर्ब होता है उसको लास्ट में भेज देता है, ठीक है। एंड दिस सेम रूल गेट्स एक्सट्रापोलेटेड इन परफेक्ट टेंस आल्सो। से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो आई हैव प्लेड फुटबॉल लास्ट वीकेंड, लास्ट संडे, आई हैव प्लेड फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेला था। तो ये क्या होगा इधर? लेट्सडर Sonntag habe ich Fußball gespielt, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इंग्लिश में क्या हुआ, हैव और प्लेड बाजू बाजू में बैठा था, राइट। जर्मन में देखो habe और gespielt, ये देखो गैप देकर बैठा, gespielt को लास्ट में भेज दिया। तो बेसिकली द रूल इज फर्स्ट वर्ब जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में मोडल वर्ब हो रहा है कान सॉल, और यहाँ पे आपका habe हो रहा है विच इज द हिल्स वर्ब। मतलब आई हैव प्लेड, आई हैव बीन, आई हैव गॉन, आई हैव ड्रिवन। इंग्लिश में हमेशा ऐसा ही होता है ना, आई हैव स्वैम, आई हैव सung, आई हैव हर्ड, ठीक है। तो जर्मन में इसका दो वेरिएशंस रहते हैं, बट इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। लेट्स जस्ट अंडर habe ich Fußball, ये जो फिर से सेकंड जो वर्ब है gespielt, इसको लास्ट में भेज दिया। तो ये gespielt जो है ये आपका प्लेट के तरह है, ये habe जो है ये आपका हैव के तरह है। सो दिस इज लाइक हैव, और ये gespielt जो है ना ये दिस इज लाइक प्लेड, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे लिखा है ना आई हैव प्लेड, तो यहाँ पे भी आई हैव प्लेड, तो इस ये आई हैव प्लेड फुटबॉल। सो लेट्स डर Sonntag मतलब लास्ट संडे। habe इश से बिफोर क्यों आया है इसमें? हाँ हाँ कौन सा? habe जो है इश से पहले क्यों आया? ये इसके इश habe हाँ नहीं होना इसमें, चाहिए। हाँ 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 वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। এবং ये एंड दैट इज वेयर आई विल कम, सो दैट इज अनदर डिफरेंस, ओके। तो इसके बाद वाला पॉइंट वही है, ठीक है। गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं इसको क्यों आगे लिखा है, राइट। आप बोल रहे हो कि मैं संडे संडे को क्यों आगे लिखा है नहीं इसका, संडे ठीक है। को ओके, लास्ट लास्ट संडे वी कैन राइट, बट habe इश क्यों है? इश habe होना चाहिए। वर्ब विल ऑलवेज बी इन द सेकंड कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने देखो दो तरीके का लिखा है यहाँ, ठीक है। लेट्स डर Sonntag habe ich Fußball gespielt और ich habe लेट्स डर Sonntag Fußball gespielt, ठीक है। तो फुटबॉल का स्पेलिंग में ठीक करता हूँ, दिस विल बी तो बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट, ठीक है। विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जर्मन में आप वर्ब का पोजीशन को सेकंड कॉन्टेक्स्ट में रख के आप बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप इंग्लिश में कभी ऐसा लिख सकते हो कि फुटबॉल हैव प्लेड आई लास्ट संडे, राइट। लास्ट संडे आई हैव प्लेड फुटबॉल जो आप बोल रहे थे, राइट, कि मैं आई को यूजुअली पहले लिखता हूँ, राइट। मैं ऐसा यूजुअली इंग्लिश में नहीं लिखता, लास्ट संडे हैव आई प्लेड फुटबॉल। लेकिन जर्मन में आपका वर्ब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा सेकंड कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। सो वर्ब शुड ऑलवेज बी इन द सेकंड कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड कॉन्टेक्स्ट? मतलब आप अगर एक सेंटेंस को पर्सपेक्टिव में स्प्लिट करते हो, अलग अलग सेक्शंस में स्प्लिट करते हो, तो किसने फुटबॉल खेला था? मैंने। कब खेला था? लास्ट संडे को। क्या खेला था लास्ट संडे को? फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कॉन्टेक्स्ट है ये सेंटेंस का। वन है कि कौन खेला था, फिर दूसरा है क्या खेला था, और तीसरा है कब खेला था। तो मैं ये तीनों कॉन्टेक्स्ट जो है, कौन खेला था, कब खेला था और क्या खेला था, इसमें से कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट को मैं फर्स्ट में लेके आ सकता हूँ। मैं फुटबॉल को भी फर्स्ट में लेके आ सकता हूँ। सो बेसिकली आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो इन जर्मन इवन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Fußball habe ich letzter Sonntag gespielt. So I can write all the three forms in German, but in English I only have probably this one and this one. I cannot write the beach one, right? This one I cannot write, right? This is
This is not possible in English. ठीक है, but in German it's possible. ठीक है, this is not possible in English, but German में all three are possible. Mhm. ठीक है, तो this is the flexibility of this language. Okay. मेन वर्ब आप कम एट आपका लास्ट, राइट? जो हाँ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मूव, जो मेन वर्ब है आपकी जैसे प्ले, तो वो आपके gespielt. लास्ट में हाँ है। हाँ हाँ हाँ, एकदम 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 एग्जैक्टली। एंड आप अगर मोडल वर्ब के साथ यूज कर रहे हो जैसे कैन, जॉल, आई कैन प्ले, आई शैल गो, वहां पे भी जो सेकंड वर्ब है वो लास्ट में जाएगा। ये आई कान स्पील एंड फुटबॉल ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जो कि इंग्लिश में होता है आई कैन प्ले फुटबॉल, आई शैल गो टू द जिम, ये कभी भी जर्मन में नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो ये लोग दो वर्ब अगर एक सेंटेंस में यूज होता है तो हमेशा सेकंड वर्ब को लास्ट में भेजेगा वो। ठीक है, हील्स वर्ब को सेकंड कॉन्टेक्स्ट में रखेगा, मोडल वर्ब को सेकंड कॉन्टेक्स्ट में रखेगा, सेकंड वर्ब को लास्ट में भेज देगा। ठीक है, तो दिस इज अनदर मेजर मेजर डिफरेंस। ठीक है, ओके। अच्छा, चौथा चौथा डिफरेंस है, तो आपको समझ आ रहा है कि कितना फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है ये लैंग्वेज। ठीक है, अभी चौथा, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो कि इवनिंग कोर्स, तो आप अलग अलग दो वर्ड यूज करते हो, इवनिंग कोर्स, फिर आप यूज करते हो कि लैंग्वेज स्कूल। ठीक है, सब अलग अलग वर्ड लिखते हो आप, इवनिंग कोर्स, लैंग्वेज स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम, राइट। आप क्या इंग्लिश में कभी ऐसा कोई लिखता है फुटबॉल स्टेडियम एक साथ, राइट, लैंग्वेज स्कूल एक साथ स्पेस देके लिखता है ना लोग, करेक्ट, राइट। इंग्लिश में आप इवनिंग इवनिंग कोर्स को एक साथ लिख सकते हो इंग्लिश में बिना स्पेस दिए, नंबर काटेगा, राइट, ऐसा लिखोगे तो, करेक्ट, स्पेस देके लिखते हो। तो जर्मन में ये सब स्पेस देना नहीं पड़ता है। ठीक है, जर्मन में आप दो तीन वर्ड्स को इकट्ठा करके एक साथ ये कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं जुजामान गेसेट्सडे वर्ड्स डे, तो मैं उतना बड़ा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ। तो इवनिंग कोर्स ये हो जाएगा डार आबेंड कोर्स। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर बेसिकली, सो आबेंड प्लस कोर्स, डार आबेंड प्लस देर कोर्स, ये दोनों मिला के हो जाता है डार आबेंड कोर्स। ठीक है, फिर लैंग्वेज स्कूल, डी स्प्राक है प्लस डी शूल है। ठीक है, दोनों मिला के हो जाता है डी स्प्राशूल है। ठीक है, थर्ड वाला डेर फुटबॉल प्लस डा स्टेडियम, दोनों मिला के हो जाता है डास फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, मेरा मेरा जो ये है ना, ये जो डेर है ना, ये डेर ही इसका जेंडर हो जाता है। तो मतलब मेरा दो तीन वर्ड्स में ज्वाइन करूंगा ना, तो जो बेस वर्ड है मेरा उसका जो जेंडर है वही वाला मेरा एक्चुअल वर्ड का जेंडर हो जाएगा। मतलब मैं अगर दो वर्ड्स को तीन वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ एक के बाद एक करके, मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूँ, तो मेरा जो बड़ा वर्ड का जो जेंडर होगा ना वो लास्ट वाला नाउन का जेंडर होगा, मतलब विच इज कॉल्ड द बेस नाउन। ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली अ स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम भी एक स्टेडियम है, लैंग्वेज स्कूल भी एक स्कूल है, इवनिंग कोर्स भी एक कोर्स है। तो मेरा एक्चुअल वर्ड क्या है, कोर्स। लैंग्वेज इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कोर्स और द स्कूल, सॉरी, इवनिंग इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, मतलब वो कोर्स कब लिया जाता है, इवनिंग। ये स्टेडियम में क्या खेला जाता है, फुटबॉल। ये स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज स्कूल इज ऑल्सो स्कूल, राइट। ठीक है, तो ये दिस इज अनदर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आप दो तीन चार पांच छह वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, एंड नॉट नेसेसरी कि ये डिक्शनरी में होना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर कुछ वोकेबुलरी, सोचो कि कोई स्पेसिफिक वोकेबुलरी अगर याद नहीं है, तो आपको अगर दो तीन वर्ड्स का वोकेबुलरी अलग अलग से याद हो, तो आपको आप तीनों को इकट्ठा करके एक वर्ड बना के लिख सकते हो, एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवनिंग कोर्स स्टूडेंट्स, इंग्लिश में थ्री वर्ड्स है, इवनिंग कोर्स स्टूडेंट्स। जर्मन में एक ही वर्ड लिखूंगा मैं, डेर आबेंड प्लस डेर कोर्स प्लस डी स्टूडेंटन। तो मेरा टोटल जो वर्ड होगा वो हो जाएगा डी आबेंड कोर्स स्टूडेंटन। ठीक है, देखो कितना बड़ा वर्ड हो गया, आबेंड कोर्स स्टूडेंटन।
हम्म, ठीक है, डी आबेंट गुड स्टूडेंट है। ओके, तो आपको अभी थोड़ा एक फनी चीज दिखाता हूँ मैं। ओके, जो देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा पागल है ये अपना लैंग्वेज को लेके। सो लॉन्गेस्ट वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड इन लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, ये क्यों नहीं दिखाया, एक मिनट। देखो, सो दिस इज अ वर्ड। ओके, 63 63 लेटर है ये वर्ड्स का। ओके, तो ये इसका मीनिंग है आपका, ठीक है, इसका मीनिंग है ये बीफ। सो दिस इज द मीनिंग बेसिकली ये वर्ड का। हम्म, तो ये वर्ड का मीनिंग है बीफ लेवलिंग, रेगुलेशन एंड डेलीगेशन ऑफ। सो ये एक जर्मनी का एक कोई यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च पेपर किसी ने बनाया था, वो रिसर्च पेपर में ये वर्ड उसने यूज किया था। ठीक है, बीफ लेवलिंग, रेगुलेशन एंड डेलीगेशन ऑफ सुपरविजन, इसका वर्ड है ये। ओके, ठीक है, एंड इसका जेंडर क्या होगा बोलो तो, अभी मैं आपको यहाँ पे ना अलग अलग करके मैं बोल रहा हूँ इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं। तो पक्का ये, भाई जो लॉ का होगा वही होगा, हाँ जो लॉ का। हाँ 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 हाँ, दिस इज अ लीगल टर्मिनोलॉजी बेसिकली। सो फ्लाइश, ये डस्ट फ्लाइश होगा, डस्ट फ्लाई, ये डस्ट होगा, प्लस ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा पागल है। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन मतलब ये लोग ऐसा पसंद करते हैं बहुत। ठीक है, तो कितना वर्ड हो गया टोटल आपका, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, छह वर्ड्स को मिला के वो लोग एक वर्ड बनाया, और बीच में एस एस डाला है, ये देखो यहाँ पे एक एस है। ठीक है, ये एस का फंडा मैं अभी आपको बोलूंगा तो आपका थोड़ा ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, ये एस क्यों ऐड हो रहा है। सो देर आर टोटल, तो ये वर्ड्स को मैं अगर इकट्ठा करता हूँ बाजू बाजू में लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको तीन एस एडिशनल मिलेगा। ठीक है, एक एस है गेसेट्स के पहले, देखो मैं बोल्ड बोल्ड करके रखा है, मैं ये वाला वर्ड को ना थोड़ा मैं फॉन्ट बड़ा करता हूँ। ठीक है,
बिकॉज ये इतना बड़ा वर्ड है। तो आपको यहाँ पे 3 एस जो है, देखो एक एक एस आपका ये है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसा लिख सकता हूँ एक्चुअली। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक प्लस एस लिख देता हूँ, तो इसको बोल्ड कर देता हूँ। प्लस और एक एस है आपका उबत रागुन के बाद, ये एक एस है। और एक ऐसे अगर उबर वाकुम के बाद, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस वर्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, तो कितना कैरेक्टर्स हो है यहाँ पे लिखा था, कितना कैरेक्टर्स है 63 ना, कितना बोला था 63 लेटर्स। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ड्स इन ओवरऑल, मतलब जर्मन डिक्शनरी में ये सबसे लार्जेस्ट वर्ड यूज किया गया है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे देखो 39 79 भी है क्या, देखो ये उससे भी बड़ा है। ठीक है, ये 79 वर्ड ये वर्ड है। तो ये बहुत टिपिकल वर्ड्स है। ओके, मतलब यूजुअली ये सब रिसर्च पेपर साइंटिफिक ये आर्टिकल वार्टिकल में यूज किया जाता है। तो इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन आपका मैंने जो ये वाला लिखा है, ठीक है, ये कितना है, तो ऐसा है, दिस छोटा ये सब बहुत यूज करता है वो लोग ऐसे। ठीक है, तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि वो लोग ऐसे अलग अलग में, यहाँ पे इंग्लिश में कितना वर्ड है, बीफ लेबलिंग रेगुलेशन एंड डेलीगेशन ऑफ सुपरविजन लॉ, कितना कितना कैरेक्टर है इंग्लिश में, कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं अगर एंड और ऑफ को भी कंसिडर करता हूँ तो मेरा टोटल 8 वर्ड है। जर्मन में एक ही वर्ड है। ठीक है, तो एंड व्हाट इज द जेंडर ऑफ दिस, एंटर एंटर, ये पूरा वर्ड का जेंडर क्या है मेरा, देखो पहला वाला वर्ड न्यूट्रल है, फिर फेमिनिन है, फिर फेमिनिन है, फिर फेमिनिन है, फिर फेमिनिन है, फिर न्यूट्रल है, लास्ट वाला वर्ड न्यूट्रल है। तो मेरा ओवरऑल वर्ड भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा लास्ट वाला वर्ड न्यूट्रल है, ये गेसेट्स गेसेट्स न्यूट्रल है ना। सो दिस इज ऑल बट लॉ ना, ये लॉ है ना, अल्टीमेटली एक लॉ है ना ये। ठीक है, ये लॉ है राइट, एक बीफ लेबलिंग रेगुलेशन एंड डेलीगेशन सुपरविजन लॉ, करेक्ट। तो ये गेसेट्स इज द मेन नाउन है। तो गेसेट्स का जो जेंडर होगा, इसका जेंडर वही होगा। गॉट इट। ठीक है, तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जर्मन लैंग्वेज का। ओके, ठीक है। तो अच्छा, अभी मैं और भी क्या क्या चीज में शेयर करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये तो बुक है, और ये ऑडियो फाइल है, ये सब मिलेगा आपको। और ये ग्रामर जेंडर वोकेबुलरी, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेटर राइटिंग। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपका लेटर राइटिंग आता है, तो लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखता है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, अभी मेरा आवाज आ रहा है ना आपको, ये Yes, मंजित। हाँ हाँ हाँ, yes. क्योंकि एक मीटिंग ना 11 बजे तक शेड्यूल था, तो यहाँ पे टाइमिंग 00 दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग क्या मीटिंग एंड ना Okay, कर okay. दें। No issue. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो लेटर राइटिंग हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Mhm, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, आप अपना दोस्त को लिख रहे हो, आप अपना ऑफिस कोलिग को लिख रहे हो, आप आपका मैनेजर को लिख रहे हो। सोचो कोई मीटिंग है, आज कोई मीटिंग था, सोचो कि कल मीटिंग है कोई दोपहर को 1 बजे से, लेकिन आपका mhm, तबीयत खराब है, कल ऑफिस नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मैनेजर को आप मेल लिखोगे, कि चिट्ठी लिखोगे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेल लिखोगे। ठीक है, yes, तो कैसे लिखोगे, राइट, जर्मन में। करेक्ट, जर्मन में हाउ विल यू राइट दैट लेटर। दोस्त yes. के साथ कोई मूवी देखने का प्लान था, तो फिर ऑफिस का काम आ गया, नहीं जा पाओगे, तो दोस्त को लिखना है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाऊंगा, खराब लग Mhm, रहा है, तो फिर अगले कब प्लान कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो mhm. ये दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, Okay. तो यहाँ पे आप एक चीज, एंड दिस इज अबाउट A1 एंड A2। नाउ Mhm, B1 के लिए मैं एक दूसरा बुक फॉलो करता हूँ, जो कि गोएथे इंस्टीट्यूट का, गोएथे इंस्टीट्यूट भी ये बुक ही फॉलो करता है। तो mhm. मे बी आई ऑल्सो फॉलो दिस बुक विच इज योर, ये। तो ये बुक में B1 के लिए फॉलो करता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये बुक में 10 चैप्टर्स है, तो एक एक चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ हम लोग ईच एंड एवरी एक्सरसाइजेस हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मेन मेन चीजें करेंगे।
अगर हम लोग ईच एंड एवरी की एक्सरसाइज करने जाए ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोगों का अल्टीमेट गोल एक ही है कि आप B1 अच्छे से पास करो, ठीक है। और B1 जब आप सीखोगे तब थोड़ा B2 के बारे में भी आपको फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं खुद B2 C1 लेवल का पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब B1 सिखाऊंगा आपको तो वो टाइम पे भी B2 लेवल का भी कुछ कुछ चीजें मैं आपको वोकैब्स वोकैब्स, हाँ, ग्रामर वैमर वो सब चीज ये कर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो बेसिकली आप आफ्टर लर्निंग B1 प्रोबेबली आपको बहुत ज्यादा मतलब कोई इंस्टीट्यूट से या ये से पढ़ने का, मैं आपको B1 B2 का क्या किताब है वो सब भी मैं बोल दूंगा, आप खुद घर पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मॉडल पेपर वेपर में दे दूंगा आपको B2 का, सो यू कैन डू दोस थिंग्स योरसेल्फ आल्सो। एंड ऑब्वियसली देखो, आप A1 A2 सीख के जब B1 कंप्लीट होगा, बाय दैट टाइम आपका 8-9 महीना लग जाएगा। तो 8-9 महीना बाद ऑब्वियसली मैं भी वो टाइम पे शायद B2 पढ़ाना भी शुरू कर दूँ, ठीक है। एट दिस मोमेंट मैं B2 ऑफिशियली नहीं पढ़ाता, मैं B1 तक ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बाय दैट टाइम प्रोबेबली मैं खुद भी B2 पढ़ाने लगूंगा। तो B2 में बेसिकली हम लोगों को ना मॉडल पेपर पेपर ही ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। B1 ऑल्सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉडल पेपर, वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ लेटर राइटिंग, ठीक है। B1 में अच्छा, अभी लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो दिस इज माई B1 बुक। So this is my B1 book basically. तो that was my A1 A2 book, ठीक है। तो A1 A2 बुक में हम लोगों का पूरा बेस जो है वो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो आपको देखो, आप अगर एक चीज नोटिस करोगे कि जो चीजें सिखाया है आपको A1 A2 का बुक, सोचो कि आप जर्मनी में अकेला ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो आप एयरपोर्ट से होटल ट्रैवल बाई मेट्रो बस, फिर आप आ, कोई सुपरमार्केट से शॉपिंग, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्टोरेंट, ठीक है। फूड ड्रिंक ऑर्डर, फूड ड्रिंक्स ऑर्डर करोगे आप रेस्टोरेंट में जाके, कोई होटल में जाके, ठीक है। फिर रेलवे स्टेशन टिकट बुकिंग, ठीक है। फिर आस्किंग डायरेक्शन, सोचो आप कोई शहर में गए, वहां का डायरेक्शन आपको ठीक तरह से पता नहीं है, आस्किंग डायरेक्शन अबाउट प्लेसेस, ठीक है। आप किसी को पूछोगे कि यहाँ पे नजदीक में बैंक कहाँ मिलेगा, यहाँ पे नजदीक में सुपरमार्केट है कोई, तो वो जो बंदा बोलेगा आपको कि सुपरमार्केट आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो वो सब टाइप का वोकेबुलरीज। या आपको कोई अगर पूछेगा कि नजदीक में कहाँ पे सुपरमार्केट है, तो आप बोलोगे सीधा जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, राइट। तो ऑल दोस काइंड ऑफ वोकेबुलरी सब कुछ हमारा A1 और A2 का 23 चैप्टर्स के अंदर है, ठीक है। ये जो 23 चैप्टर्स में दिखा है ना आपको, यहाँ पे ऑल दोज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आर देयर। अच्छा, फिर गिफ्ट, आप किसी बर्थडे में गए, किसी कोलिग का एनिवर्सरी में गए, या कोई से 10 इयर्स कंप्लीट हुआ है उसका ऑफिस में, तो उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट देना है आपको, तो व्हाट टाइप ऑफ वोकेबुलरीज विल बी देयर। फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, आपका कुछ तबीयत खराब है, ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, कैसे अपॉइंटमेंट लोगे डॉक्टर का। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीवी राइटिंग इन जर्मन, ये भी सीखेंगे हम लोग A1 A2 का बुक के अंदर, चैप्टर 22, ठीक है। चैप्टर 22 में ये देखो, ये देखो, तो ये है एक सीवी का फॉर्मेट राइट साइड में, ठीक है। तो ये सीवी में ये जो वोकेबुलरीज ये लोग यूज किया है, ओके। तो ये सब चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आप भी अपना सीवी बना सकते हो जर्मन में, ठीक है। सीवी राइटिंग, ओके। ग्रामर में क्या क्या सीखेंगे, एक्टिव, पैसिव, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट टेंस, फ्यूचर, ठीक है। फिर कंजंक्शंस मतलब कनेक्टर्स, कनेक्टर्स बोले तो बिकॉज, देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, ठीक है। हु, वेयर, विच, ठीक है, वेयर फ्रॉम, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, ओके। फिर आपका डाटिव, गेनिटिव,
नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ये जो 4 केस है, केसेस, ठीक है। अच्छा, सीवी राइटिंग हो गया। और फिर क्लोथ्स, क्लोथ्स एंड बॉडी पार्ट्स, मतलब आपका सर से लेके पाँव तक जो आपका हाथ है, पैर है, चेस्ट है, ये है, योर फुट है, कमर है, ठीक है। तो ये सब बॉडी पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं? क्लोथ्स मतलब स्कर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ये सब चीजों को क्या क्या बोलते हैं? ऑल दिस थिंग्स वी विल नो, ठीक है। क्लॉथ्स एंड बॉडी पार्ट्स, ओके। और क्या सीखेंगे कि आप कोई शहर में गए हो, कोई टूर बुक किया, वो टूर बुकिंग के टाइम पे कैसे रहता है उन लोगों का टूर बुकिंग कैसे रहता है, और टूर में क्या क्या टाइप का चीजें दिखाता है। फिर थिएटर दिखाओगे, मूवी देखना, ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और फिर मॉडल, और फिर क्या क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रामर में? ऑब्वियसली मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब सीखेंगे। फिर पार्टिसिपाइंस, पार्टिसिप थोड़ा मैच्योर कॉन्सेप्ट है ये, पार्टिसिपाइंस ज्वाई, ठीक है। पार्टिसिपाइंस मतलब जैसे आपका हो गया टू क्राई, हाँ, जैसे हो गया आपका टू क्राई, ये एक वर्ब है। ये क्राइंग, ये जब एडजेक्टिव के हिसाब से यूज होता है तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपाइंस, और तो इसको पार्टिसिपाइंस भी बोलते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको, ओके। यार ये क्या होता है? टू मिस, ये वर्ब है, ये मिस्ड, ये एडजेक्टिव, सो ये मिस्ड, ईडी। तो यहाँ पे आपका पार्टिसिपाइंस में क्या होगा? पार्टिसिपाइंस में आपका हो जाएगा आईएनजी, एडिंग ऐड होगा। और पार्टिसिप ज्वाई में आपका हो जाएगा मिस्ड, ये ईडी ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिप ज्वाई और पार्टिसिप परफेक्ट। और ऊपर वाला को बोलते हैं पार्टिसिप आइंस और पार्टिसिप प्रेजेंट, ठीक है, ओके। क्लोथ्स, बॉडी पार्ट्स, और क्या हम लोगों का? इधर अगर आप ये देखोगे, हाँ, नेशनलिटी, जियोग्राफी, नेशनलिटी, यूरोपियन जियोग्राफी, कंट्री, बॉर्डर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूरोप का देश के बारे में जान रहे हैं तो। अच्छा, बिजनेस कार्ड, कैसे एक बिजनेस कार्ड को हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? बिजनेस कार्ड, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। लेटर एंड ईमेल एंड पोस्ट कार्ड राइटिंग, ठीक है। और क्या? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका राइट अबाउट योर डेली शेड्यूल। आप मॉर्निंग से उठ के रात तक क्या क्या करते हैं, ठीक है, आपका पूरा दिन का शेड्यूल, ठीक है, आपका पूरा दिन का शेड्यूल एकदम, हाउ विल वी राइट, ठीक है, वो सब चीज सीखने वाला है हम लोग। ग्रीटिंग्स, ठीक है, कैसे आप ग्रीट करोगे, ग्रीटिंग्स एंड थैंकिंग एंड रिक्वेस्टिंग। फिर टेलीफोनिंग, बिजनेस कॉल, वेदर, हॉलीडेज, यस वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर एंड हॉलीडेज। आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, वेदर कैसा है, ठीक है। वेदर मतलब सनी वेदर, रेनी वेदर, फॉगी वेदर, विंडी वेदर, स्नोई वेदर, ठीक है, ऑल दिस, ओके। और हाँ, लिविंग इन जर्मनी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स? शेयर्ड अपार्टमेंट, सिंगल फैमिली हाउस, टू फैमिली हाउस, मतलब दो फैमिली रहता है एक बड़ा बिल्डिंग में, वन फैमिली हाउस, रो हाउस, स्टूडेंट अकोमोडेशन, शेयरिंग अकोमोडेशन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री टाइम, लेजर एक्टिविटीज,
तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट डू वी लाइक एंड व्हाट डू वी डोंट लाइक। Okay. व्हाट डू वी लाइक, व्हाट डू वी डोंट लाइक, एवरीथिंग। तो मतलब आपका उधर में कोई जॉब के लिए अगर अगर जाओगे एंड आपको अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली आपको अपने इंट्रोडक्शन अच्छा खासा आपको इंट्रोडक्शन बोलने को बोल पाओगे आप A1 A2 के बाद। ठीक है, तो एवरी टाइम हम लोग जब चैप्टर्स ये करेंगे ना, हम लोग हमारा इंट्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, टाइम, हाउ टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ अराइवल, डिपार्चर ऑफ ट्रेन, बस, ट्रैम, फ्लाइट। ठीक है, हाउ टू टॉक अबाउट 12 आवर एंड 24 आवर क्लॉक। ठीक है, 24 आवर क्लॉक को क्या बोलते हैं? 24 आवर क्लॉक को बोलते हैं ऑफिशियल Yes. टाइम, ऑफिशियल टाइम। एंड 12 आवर क्लॉक को इनऑफिशियल इनऑफिशियल क्लॉक। तो 12, इसका मतलब क्या है? जब दोस्त लोग या इनफॉर्मली लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तब 12 आवर क्लॉक यूज करता है। मतलब Okay. हम लोग दोपहर को 3 बजे मूवी देखने जाएंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट होता है, ऑफिशियल का अनाउंसमेंट होता है, या कोई रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में या बस स्टॉप में या कोई सुपरमार्केट मार्केट में जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है बहुत सारा पब्लिक के लिए, तो फिर 24 आवर क्लॉक यूज करता है। ठीक है, आप एयरपोर्ट में कभी देखे हो कि दो बोलता है कि नोटिस बोर्ड में, जो एयरपोर्ट में जाते हो आप, राइट? तो एयरपोर्ट में कभी देखे हो कि वो लोग लिखता है कि शाम को 3 बजे फ्लाइट छूटेगा, वो लोग बोलता है 15 बजे फ्लाइट छूटेगा। तो 15 मतलब शाम को 3 बजे, राइट? वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, सब जगह में आपका 24 आवर क्लॉक यूज होता है हमेशा। जो भी Yes. ऑफिशियल जगह होता है वहां पे कभी भी 12 आवर क्लॉक यूज नहीं होता है, क्योंकि 12 आवर क्लॉक यूज करना थोड़ा दिक्कत है। मतलब आपको AM PM लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जगह चाहिए उसके लिए। ठीक है, 24 आवर क्लॉक लिख दो आप 15:23, सो यू राइट लाइक दिस। अभी जिसको जो समझना है समझ जाएगा वो। इसको ही आप अगर लिखोगे PM के लेके, देखो कितना PM लिखना पड़ रहा है, राइट? जगह ज्यादा चाहिए ना इसके लिए, तो इसके लिए ये यूज नहीं होता है। ठीक है, ये कब यूज होता है आपका? ये यूज होता है लोग जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब वो बोलेगा कि 3:23 इन द आफ्टरनून। ठीक है, ऐसा बोलेगा लोग कि शाम को 3:23 में। ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियली 15:23 बोलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये Yes. सब हम लोग, ये ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न। अच्छा, ट्रैवलिंग, कंट्री साइड वर्सेस सिटी साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और क्या सीखेंगे हम लोग? फर्नीचर मूवमेंट व्हेन वी रिलोकेट, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में जब रिलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारा फर्नीचर जो है घर का सब मूव करेंगे मूवर्स एंड पैकर्स को लेके। ये कैसे, ये टाइप का बुक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जर्मनी में आप अगर जाते हो, आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहोगे, आज एक जगह में रेंट में रहा, दूसरा दिन 4-5 महीने बाद आपका देखा कि वो वाला जगह में भाड़ा भरा रहा है, या कुछ दूसरा आपका कोई दोस्त है, वो अभी इंडिया से उधर गया है, तो वो कुछ घर ढूंढ रहा है, तो आप बोल रहे हो उसको कि चल हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो मैं मेरा जो घर है वो छोड़ रहा हूँ। तो आप पूरा सामान वामान लेके एक घर से दूसरा घर जाओगे, तो ये उधर जाके आपको मूवर्स एंड पैकर्स वालों के साथ बात करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं मेरा सामान को ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग में लेके जाना चाहता हूँ। तो व्हाट आर द काइंड ऑफ वोकेबुलरीज दैट वी कैन यूज? फर्नीचर मूवमेंट व्हेन वी रिलोकेट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी Okay. वन हाउस टू अनदर। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं जो डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाया, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। तो B1 का तो बुक, ये बुक है विच इज 264 पेजेस। तो बहुत बढ़िया बुक है, ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास बुक है। सो द चैप्टर्स आर वेरी वेरी नाइस। ठीक है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये सब चैप्टर्स का, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा रहता है। एंड हम लोग मेन मेन मुद्दा जो है, जो एक्सरसाइजेस का, वही सब कवर करने वाले हैं ये बुक से। ठीक है, we will cover the main exercises, ठीक है, because there are 10 chapters, okay, and each chapter will take around 3-4 days to complete। ठीक है, if we do 2 hours class, ठीक है, तो 3-4 डेज तो लगेगा एक एक चैप्टर B1 का कंप्लीट करने में। A1 A2 का चैप्टर शायद शुरू शुरू में 1-2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे 3 क्लास लगेगा, कभी कभी 4 भी, 4 नहीं होगा, 3 क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो B1 का चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा।
चार क्लास तो लगने वाला है एक एक चैप्टर खत्म करने, ठीक है। ओके। वेदर एंड हेल्थ, जैसे मैं बोला, आप कैसे अपना, अच्छा वीकेंड में आप क्या करोगे। सो बेसिकली आपका एक्टिविटीज जो है, तो ये वाला आपका फ्री टाइम लेजर एक्टिविटीज, ठीक है। व्हाट व्हाट आर यू व्हाट डू यू डू नॉर्मली, हम्म। एंड व्हाट डिड यू डू इन द वीकेंड, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ओके। अच्छा, और है हम लोगों का मॉडल पेपर पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर जाता हूँ। कुछ वोकेबुलरी का लिस्ट में दूंगा आपको, जो आपको थोड़ा आपको तैयार करना पड़ेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे देखो, ये सब मॉडल पेपर है, ठीक है। सो दीज आर मॉडल पेपर्स बेसिकली। तो मॉडल पेपर में 4 सेक्शन रहता है आपका, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो ये दिस मॉडल पेपर्स वी विल गो थ्रू, A1 का, A2 का। तो आप तो डायरेक्ट B1 दोगे, राइट? आप A2 का एग्जाम दोगे बीच नहीं में? नहीं। आप डायरेक्ट B1 दोगे, बिकॉज A2 का एग्जाम देने के लिए आपका टाइम भी वेस्ट होगा थोड़ा, मतलब आपको खुद का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम देने के पहले 10-15 दिन तो आपको खुद को पढ़ाई करना ही पड़ेगा, मतलब टीचर तो पढ़ा दिया, तो हम लोग उतना सारा कुछ पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, फिर एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद 10 दिन बाद एंड उसका रिजल्ट आएगा, तो आपका 20-25 दिन का टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा है डायरेक्ट B1 दे दो, समझ गए? तो आपका टाइम बचेगा 20-25 दिन का, ठीक है। तो आपका 2026 पूरा आपका टाइम है, राइट? एंड आप अगर शुरू करना चाहते हो तो 2000 ये दिसंबर से शुरू करना चाहते हो, राइट? नहीं, मेरा एग्जाम है मास्टर्स का अभी दिसंबर में। ओके ओके। जनवरी से आप मैं भी आप स्टार्ट आप करूँ। अभी क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। हम्म। आपका ऑलरेडी प्रीवियस, मतलब आप क्या फुल टाइम मास्टर्स कर रहे हो या जॉब ना ना, करते करते कर रहे हो? जॉब करते करते कौन सा कंपनी में जॉब करते हैं आप? HCL में। HCL टेक्नोलॉजीज। यस। अच्छा, वो गुड़गांव में है ना? नहीं, नोएडा। नोएडा में? आप रहते भी नोएडा में हो? दिल्ली। और दिल्ली वेयर डू यू स्टे? बुराड़ी, सन नगर। अच्छा अच्छा, वो मेट्रो है ना उधर भी? GTB। नो नो, थोड़ा दूर है, अभी बन रही है नई मेट्रो, 10 किलोमीटर अवे है GTB विश्वविद्यालय वाला, नॉर्थ कैंपस। ओ ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नया नया बन रहा है लाइन। बन रहा है, 5 किलोमीटर दूर है एक, वो बन रहा है। ओ, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा। मैं फोर दिल्ली फाइव गया था, किलोमीटर मैं दिल्ली गया हूँ, लेकिन हाँ, हम्म उतना कुछ डिटेल्स में मेरे को पता नहीं है। आई हैव बीन टू साउथ हम्म एक्स, डिफेंस कॉलोनी, वो सब जगह गया हूँ मैं। साउथ साउथ पार्ट दैट है। साउथ एक्स, डिफेंस हौज कॉलोनी। खास, ग्रीन पार्क। हाँ हाँ हाँ, दोस्त थिंग्स आई हैव विजिटेड, दोस्त प्लेसेस। फिर मैं इफ्को चौक वॉक गया हूँ, गुड़गांव का, वो सब जगह गुड़गांव, भी गया हूँ। दिल्ली दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। इसको हाँ, चौक, सिकंदरपुर। करेक्ट करेक्ट, हाँ। हम्म, पहले मैं गुड़गांव ही था, मतलब लास्ट 4 5 6 इयर्स, अभी इस साल नोएडा है। हम्म हम्म वही है, अब देखते हैं क्या है। नहीं, डेफिनेटली। तो कैसा लगा आपको, मतलब डेमो? हाउ डू यू फील लाइक? नहीं, डेमो अच्छा है। लाइक मैंने अभी 2 3 डेमो इसलिए शेड्यूल करा रखे, लाइक मेरा एक कल भी डेमो है किसी और से, तो हम्म उनका भी A1 A2 का ही मैंने बात करी हुई है, क्योंकि मुझे हम्म 2026 के लास्ट तक B1 देना है। नो नो, यू आर ऑन ट्रैक, ठीक है। डेफिनेटली आप तो हफ्ते में 2 क्लास करोगे, राइट? हफ्ते यस में 2 क्लास करने का टाइम मिलेगा ना आपको? यस यस। तो हफ्ते में 2 क्लास करोगे तो आपका अच्छा से हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा से हो जाएगा। मतलब हम लोग डेप्थ में सीखेंगे, हम लोग मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे हम्म पास देखो, मेरे पास पूरा भंडार पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको हम्म अगर मेहनत करना चाहते हो तो मेरे पास बहुत बहुत कुछ है, मतलब लेटर राइटिंग का कलेक्शन, ठीक है। मतलब हम लोग क्लास में जो जितना करेंगे ना, सोचो कि हम्म उससे 2 गुना आपको होमवर्क होमवर्क में टाइम देना पड़ेगा। एंड हम्म इनिशियली तो ठीक है, चलो, उतना ज्यादा टाइम हम्म नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम्म ग्रेजुअली जब हम लोग चैप्टर 5 6 7 वो सब जगह में हम्म जाएंगे ना, A1 A2 का, तब धीरे धीरे हम्म मतलब आप देखोगे कि वोकेबुलरीज इतना ज्यादा ज्यादा हो रहा है, इतना नया नया चीजें सीख रहे हो आप। हम्म प्रैक्टिस आपको बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। मतलब आप अगर हफ्ते में 4 घंटा क्लास में दे रहे हो, तो समझ लो हम्म कि
पहला 1 महीना बाद से आपको मोटा मोटी 6-8 घंटा खुद देना पड़ेगा घर पे, ठीक है। ओके। और मैं भी होमवर्क काफी देता हूँ, और हम्म मैं स्टूडेंट्स को पूछता भी रहता हूँ कि होमवर्क किए हो, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ टीचर कि मैं 2 घंटा क्लास में पढ़ाया और 10 घंटा का होमवर्क दे दिया, अभी स्टूडेंट हम्म करे या ना करे वो उसका टेंशन है, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं आपको बोलता रहूंगा हर दो दो दिन बाद कि किया है कुछ तो मेरे को भेजो, मैं करेक्शन करूंगा, ठीक है। तो मैं बोलता रहता हूँ, देखो मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, मैं प्राइवेट टीचर्स भी है, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी मेरा बहुत है, ठीक है। तो ओके। ये देखो मेरा प्राइवेट स्टूडेंट्स है, तो मैं दो कैटेगरी है मेरा, स्कूल स्टूडेंट्स और जॉब एंड हम्म हायर स्टडी स्टूडेंट्स। तो मेरा ओके। स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर देखो क्लास 5 to 9 सबको है। मैं बिशप कॉटन बोल के एक स्कूल में पढ़ाया भी है, बेंगलोर का, ऑनलाइन में पढ़ाया मैं, ठीक है। एंड ओके। दिस इज माई स्टूडेंट लाइक जॉब एंड हायर स्टडी स्टूडेंट विच इज लाइक यू, ठीक है। जैसे हम्म तो दीज आर ऑल माई स्टूडेंट्स, तो कंप्लीटेड है इन प्रोग्रेस, तो इन प्रोग्रेस में देखो ये सब मेरा स्टूडेंट्स, तो ओके। ऑल ऑफ दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें से हम्म ज्यादातर ही मेरा प्राइवेट है, कुछ है मेरा हम्म जो इंस्टीट्यूट के थ्रू है, ठीक है। हम्म तो डेफिनेटली आप भी पढ़ोगे मेरे से, तो स्किल बेस के हम्म थ्रू ही पढ़ोगे, बट हम्म इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। आपके पास टाइम है 1 साल, ठीक है, आराम हम्म से आप 10 महीना में हम लोग खत्म करेंगे। आप 1 महीना 2-3 हफ्ता आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए रखो, फिर आप हम्म 11th मंथ में एग्जाम दो, 11th मंथ में हम्म एग्जाम देके आप 15-20 दिन बाद रिजल्ट मिल जाएगा आपको, आई थिंक एट द एंड ऑफ 2026 आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए B1 का, ठीक है। और दिल्ली में रश बहुत रहता है, मतलब बहुत लोग सीखते हैं यस। दिल्ली में, हम्म ठीक है। तो आपको थोड़ा एडवांस में बुकिंग कर लेना पड़ेगा एग्जाम का, गोएथे हम्म इंस्टीट्यूट। एंड यस। गोएथे इंस्टीट्यूट में कैसे बुकिंग करता है, और आपका करियर के रिगार्डिंग अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे पास वेबसाइट वेबसाइट बहुत कुछ है। एंड इफ यू लर्न फ्रॉम मी, तो मैं आपको एक और हम्म चीज अच्छा चीज दूंगा, विच इज दिस बुक इज वेरी वेरी नाइस बुक, ठीक है। ये बुक इज डिजाइंड बाय जर्मन कॉन्सुलेट एंड गोएथे इंस्टीट्यूट फॉर पीपल हम्म हु आर गोइंग टू जर्मनी। एंड उन लोगों को पहला 1 महीना ये बुक बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे ना सब, आप उधर जाके हम्म कोई घर में रहोगे, रेंटल एग्रीमेंट करोगे, वहां पे हम्म जो आपका ये रहता है, मतलब रेंटल एग्रीमेंट का, आप जो वहां पे रहोगे, सिटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सिटी रजिस्ट्रेशन, आप जो शहर में जाओगे जॉब करोगे वहां पे आपको एज ए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप अगर कोई किराए में कुछ घर लिया है, तो आपका लैंडलॉर्ड ने जो एग्रीमेंट दिया है वो एग्रीमेंट देके आपका पासपोर्ट वीसा वीसा सब लेके आपको वहां का हम्म सिटी ऑफिस में जाना पड़ता है, और आपको आपका नाम वहां पे रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ओके। ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। फिर इंश्योरेंस, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में इंश्योरेंस बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, ठीक है। फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, आपका फैमिली जाएगा तो बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाना, आप कोई हम्म इंटीग्रेशन कोर्स करना चाहते हो, सो ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे कैसे, शॉपिंग करने जाओगे, आप कोई सब्जी वब्जी खरीदने गए, ठीक है, टोमेटो, ये देखो टोमेटो वोमेटो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मोटा मोटी एक घर से एक फॉर्म बना के गए, तो फिर वो दिखाया उसको जाके हम्म दुकानदार को, ठीक है। तो ओके। वेरी वेरी हाई क्वालिटी बुक, ओके। तो ये सब मिलेगा आपको मेरे से, ठीक है। सो ऑल दिस पीडीएफ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, सो ये, तो यहाँ पे जो ये पीडीएफ है ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। फिर देखो मेरा अर्बन प्रो बोल के एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं एक रजिस्टर्ड टीचर हूँ, ठीक है। तो ओके। वहाँ पे मेरा बहुत सारा लेसन्स है, ठीक है। देखो हम्म फिर यहाँ पे देखो ये सब मेरा ग्रामेटिकल लेसन्स है, सो ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न, ठीक है। तो सब कुछ सीखने का बहुत कुछ है, मेरे पास कलेक्शन भी भर 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 के है, तो आप हम्म थोड़ा मेहनत करोगे ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील टू पास B1। देखो अभी मेरा आपका क्लास खत्म होगा ना, तो ही मेरा दूसरा स्टूडेंट का क्लास 1 चालू होगा, ये क्लास 8 में पढ़ता है, ठीक है। ओके। तो उसका मम्मी फोन किया था मेरे को, तो मतलब हम्म आई एम लाइक फुल टाइम जर्मन टीचर नाउ डेज, मतलब आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, एंड जर्मन इज अ वेरी हाई डिमांडिंग लैंग्वेज, बहुत लोग सीखता है हम्म जर्मन, मतलब क्यों सीखता है, मतलब एक तो हम्म है हायर एजुकेशन, वन इज हायर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई है, हायर यस। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी हाई, एंड चीप यस। ऑल्सो, चीप कंपेयर टू यूएस, यूके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम्म एटसेट्रा, ठीक है। फिर व्हाट इज द अदर थिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज,
जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सा सेक्टर में है? आईटी, नर्स, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। Okay. हॉस्पिटैलिटी लाइक शेफ Mm-hmm. एक्सेट्रा, मतलब कुक बुक का बहुत रिक्वायरमेंट है वहां पे। और ऑटोमोटिव मतलब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, वॉक्सवैगन, ठीक है। ऑटोमोटिव Mm-hmm. इंजीनियरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत हाई डिमांडिंग है ये। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ओके, यूरोप का नंबर 1 इकोनॉमी है। ओके, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। Okay. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली, तो मैं ये शीट तो कैसा लगा? यू लाइक दैट? ये ना आपको थोड़ा बहुत काफी आइडिया आ गया ना कि Mm-hmm. Yes. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी विल लर्न, करेक्ट? Yes. तो ये Yes. सब जो मैं देखा है, ये सब A1 A2 का मेन टॉपिक्स है। B1 में Mm-hmm. द टॉपिक्स आर स्लाइटली इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ, ये थोड़ा ये है मैच्योर टॉपिक्स है। Mm-hmm. ठीक है, तो वो लोग कुछ स्पेसिफिक जगह को लेके पढ़ाएगा, ठीक है। थोड़ा हिस्टोरिकल चीजें हैं, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली, ठीक है। तो या दैट्स फाइन देन फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस? ऑब्वियसली क्वेश्चन तो No, काफी। not हम्म, now. No. तो आपका प्लान है जनवरी से, राइट? Yes. हाँ, तो ठीक है, आप इन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना हाँ जी, हाँ जी। एंड let them know। Mm-hmm. Okay. ठीक ओके, है। एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है कुछ भी, अभी तो स्टार्ट ही है। हाँ, लेकिन डुओलिंगो आप करते रहो, आई विल एनकरेज यू, हम्म। डुओलिंगो करते रहो। और डुओलिंगो में जो नया नया चीज सीख रहे हो, ठीक है, हम्म। वो आप थोड़ा डॉक्यूमेंट करते रहना, ठीक है। योर नेम इज मनजीत, राइट? योर नेम इज मनजीत, राइट? मंजीत, हाँ यस। हाँ, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली एनकरेज यू कि आप इसका डुओलिंगो करना। हम्म। डुओलिंगो में वट एवर वोकैब्स यू लर्न, तो उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट करना, थोड़ा सेंटेंस सेंटेंस लिखना, ठीक है। जैसे हम्म। देखो, आई ऑल्सो एम ट्राइंग, सो दीज आर द वोकैब्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम डुओलिंगो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सेंटेंसेस लिखता हूँ, ठीक है। बट आई ऑल्सो मीन्स couldn't do it so systematically. I also should have done it more systematically. ठीक है, हम्म। इट्स अ नाइस प्लेस, यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू विद दैट। तो आप मेरे से पढ़ो या किसी और से भी पढ़ो, लेकिन हम्म। डुओलिंगो कंटिन्यू कंटिन्यू रखना, फ्री में कंटिन्यू रखना। वहाँ पे प्राइम हम्म। मेंबरशिप भी होता है, 215 रुपए देके महीने का, ठीक है, यस, वो भी कर सकते हो प्राइम आप। मेंबरशिप, यस। हाँ, तो वहाँ पे भी वो करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यस यस यस। एडवर्टाइज नहीं देखना पड़ेगा आपको। प्रीमियम है, मैंने लास्ट ईयर भी थोड़ा सा 1-2 महीने किया था, अब दोबारा स्टार्ट किया है। हाँ 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 हाँ, करते रहना, वो डुओलिंगो करते रहना, ठीक है। ओके, एंड एनी ओके। आपका कोई दोस्त वोस्त कोई अगर सीखना चाहता है तो वो भी आप ये कर सकते हो, हाँ जी, ठीक है। अभी तो मैं ही स्किल हूँ। भी, हाँ, मतलब जैसे ही मैं पूछा, मतलब आप हम्म। स्किल यस बिज का ये दे सकते हो उन लोगों को भी, ठीक यस। है। चलो मंजित, नाइस टॉकिंग टू यू। हाँ हाँ ओके, हाँ, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच, हाँ, विद स्किल बिज को बताना उन लोगों को। हाँ, यस ठीक है। यस यस। हाँ हाँ थैंक हाँ, यू। वो आप स्किल बेस से पढ़ोगे तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज उन लोगों के पास दूसरा जर्मन टीचर नहीं, ठीक है। आई एम द हम्म। ओनली जर्मन टीचर फॉर देम, ओके हु ओके। इज वर्किंग विद देम, ठीक है। या तो उसका जापानीज थोड़ा टेंशन। स्किल के पास ज्यादा, मैंने देखा था उनका पोर्टल, जापानीज टीचर ज्यादा है। ओह अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स गुड, हम्म। दैट्स गुड। ठीक है, मैं ये एक्सेल शेयर कर दूंगा उन लोगों से, ओके सो आई विल टेल देम टू गिव यू, ठीक है। या ओके। बाय, थैंक यू। चलो, या थैंक्स अलॉट, हैव अ नाइस वीकेंड।